there was a young guy sitting there. At some point he said, you need to remove your bra. So I found it really fishy. Somebody was trying to touch me, I don't know, some place, and I caught hold of that person's hand. I squeezed it. I'm sure मैंने उसकी एक आध हड्डियाँ तो तोड़ ही दी होंगी. Red flags होते हैं abuse. Abuse सिर्फ physical नहीं होता है, mental abuse होती है, emotional abuse होती है. Yeah. And I was living in denial too. When you get those signs, you should move on before life pushes you out that door. जैसे ही एक औरत माँ बनती है, उसे बोला जाता है बेटा झुको मत, बेटा ये मत करो, आराम से बैठो, राइट? जैसे ही बच्चा बाहर आता है, सडनली सारा फोकस, ऑल कैमरास मूव टुवर्ड्स द चाइल्ड. वी हैव ऑल सीन वुमेन इन अ वेरी डोसाइल स्पेस. टिमिड है. धीरे से बात करो बेटा, ज्यादा दांत मत दिखाओ, ऐसे भी चीज होती है. पैर खोल के मत बैठो. पैर खोल के मत बैठो, राइट? फिर रात को तितली भी बन जाओ अपने हस्बैंड के लिए. हेलो एवरीबडी, निशा रावल जी को ले आए हैं हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया. So this is your space, and you know we've had your son go in, but how easy or difficult is it to manage a full work life and a बच्चा? मैं ये नहीं बोलूँगी कि easy है. It's actually very difficult because you sleep for less number of hours. You make sure that बच्चा ठीक है, उसकी routine is going well, especially when you're single-handedly doing a lot of things. You know, suddenly you've become this, you're spearheading your operations. You're just, you know, you have to bring food to the table. You have to make sure the house is in the running order. You have to make sure bills are paid. But without really glorifying my hustle, I'll say that चल जाती है, निकल जाती है लाइफ ऐसे. No, kudos यार, you're doing a great job. Thank you. मैं तो सवाल पूछते ही immediately सोचा, मैंने कभी मैं मर्द से मिलके ये सवाल तो नहीं पूछा. But आपके लिए आपका फेमिनिज्म क्या है निशा? If God gave me a wish, whether you want to be a man or a woman again in your next life, I would still choose a woman. Because जहाँ पर एक औरत की biological challenges उसके लिए pain लाते हैं और साथ में उसको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो मर्द भी करते हैं, तो इट समवेयर सॉफ्टन्स यू. और धीरे धीरे अपने आप को दुनिया देखकर, एक्सपीरियंस करके, एक्चुअली उस हसल का पार्ट बन के कि ये कितना मुश्किल है, ये कितना इजी है, आप समझ जाते हो कि इतना ही मैं कर सकती हूँ और उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज आपकी नेक्स्ट डोर मदर 10 चीज़ें कर रही है एक साथ, ज़रूरी नहीं कि आपको 11 करनी. इट्स वेरी ईजी टू कैजुअली पास अ रिमार्क कि अरे तुमने इसके मुँह में पैसिफाई क्यों डाला हुआ है, आपको पता है इसके दांत खराब हो जाएंगे. अच्छा बेटा तुम्हारी नॉर्मल हुई थी कि सी सेक्शन हुई थी? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपका नाम? I'm like, अच्छा और ये तो ठीक है. उसके बाद अगर आपने बोल दिया सी सेक्शन हुई थी, you know, then that look that comes is like as though you're less of a woman because you did not go through the pain of labor. Even if I chose a C-section because it makes my pregnancy journey smoother, I have the right. It's my body. आपकी चॉइस है. प्रेगनेंसी के बाद की भी जो कॉम्प्लिकेशंस या बातें होती हैं उनके बारे में भी बात करते हैं. आपका क्या फेज रहा? So you know, I think my anxiety was at its peak. I don't think at that time I had understood about my anxiety bit because my meds happened after that. Breastfeeding journey मेरी बहुत difficult थी. I had developed mastitis also in one of the breasts. It's a complication जहाँ पर आपकी मिल्क डक्ट ब्लॉक हो जाती है. So I was excessively producing milk and my breast size had gone up like some 3 sizes. These are things that you're physically going through a lot, right? And then you're sweating profusely, and then you know there is let down reflexes. That means your milk is just coming out. Okay. Now there is a human that was inside of you until yesterday. Now it's outside. So now that human's going to pee, poo, you know, do everything and cry and then want milk. And the only food you can give that human is through your breasts. There was a time when I remember some relatives were visiting me and they said, तुम बच्चे को बॉटल से दूध पिलाती हो? You know, I'm like, yeah, but now I know why. Because technically the reason is that I have an anxiety issue and the doctor told me बच्चे को इतने ml दूध इससे मिलना चाहिए and I wanted to make sure उसे मिले, तो मैं उसको कैसे वो दिलाऊं, उसके लिए मुझे उसको मेजर करना है और मैं अपने ब्रेस्ट से उसके मुंह के अंदर तो मेजर नहीं कर सकती. So I have to, you know, put it in a container. Now I can say it. And second thing, or rather the first thing is, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मेरा बच्चा है, मैं उसे पाल रही हूँ, वो मेरे शरीर के अंदर था, उसके भूख का ख्याल मुझे रखना और मैं रख रही हूँ. जैसे ही एक औरत माँ बनती है, उसे बोला जाता है बेटा झुको मत, बेटा ये मत करो, आराम से बैठो, राइट? जैसे ही बच्चा बाहर आता है, सडनली सारा फोकस, ऑल कैमरास मूव टुवर्ड्स द चाइल्ड. द मदर इज इग्नोर्ड रॉयली. उसे बोला जाता है पेट अंदर करना है, जीरा का पानी पियो, ये करो, लपेटो अपने पेट को. So
I'm saying all of those things and then suddenly बच्चे का ये क्या, बेटा ये खाओ क्योंकि बच्चे को दूध अच्छा मिलेगा. But I mean, what about the mother? So if you know of a mother who's just delivered, she is probably overwhelmed, she's breastfeeding, she's changing diapers, washing clothes, doing everything it takes and going through all those changes in her body and still handling those hormones. So please reach out. Even saying something like, यार चल 1 घंटे के लिए मैं तेरा बच्चा संभाल लेती हूँ. But मुंबई में आपकी अपब्रिंगिंग हुई पूरी. जी. तो मुंबई एज अ शहर आपको क्या देता है? Like as a woman, what is it teaching you? क्या क्या आपको बताया गया कि एज अ वुमन आपको ऐसे जीना है या ऐसे रहना है? I think मुंबई मुझे सबसे पहली चीज़ जो देता है वो है सेफ्टी. बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं रात को 2 बजे आ रही हूँ, 4 बजे आ रही हूँ, या मैं शूट से लेट आ रही हूँ या पार्टी से आ रही हूँ. मुंबई है ऐसा शहर, मुंबई आपको एक एनर्जी देता है. लेकिन आप लोकल में ट्रैवल करती होंगी, कभी बेस्ट में जाती होंगी, तब कभी कोई ईव टीजिंग वाले किस्से, कहानियाँ? सो ईव टीजिंग का एक किस्सा मुझे याद है. Somebody was trying to touch me, I don't know, some place, and I caught hold of that person's hand. And I was young, right? I was just in 12th standard, and I caught it so hard, I squeezed it. I'm sure मैंने उसकी एक आध हड्डियाँ तो तोड़ी दी होंगी, you know. And I'm sure that person must have remembered, because what else can you do in such a crowded place जहाँ पर आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, लोग भी नहीं, आप हिल भी नहीं पा रहे हो. And that is a place where people take advantage of touching your body parts. मैं निशा इसलिए भी पूछते हैं हम लोग ये सवाल, क्योंकि अमूमन सब महिलाएं कुछ हमें बताती हैं. There is never been a time where somebody has said no. Yes. I've not had a किस्सा. Yes. And it is just for that कि आप लोग समझें कि ये नहीं करने की कोई ज़रूरत. And I also remember another incident. I was traveling in a BST bus. ये college के time पे ही था. If you're a girl sitting at the aisle, and the man will like come so close and stand next to you. Initially you would be like, okay, why is somebody like standing so close? And then gradually you start understanding. The shoulder rub and all of that. Yeah, like you know, आपका shoulder is level पे और कोई आके आपके इतने पास खड़ा है, right? And then I was like, what the? Like I was like, ये क्या है? पता है क्या होता है कि I was totally put off traveling in public transport. So it's really sick and it's really sad that only because you're a woman you're going through it. और जब आप छोटे होते, you're a teenager, right? There are men standing on top of you to see peep in. Yeah. It's like sick. Yeah. You know, and then this whole difference of अगर तुम औरत हो, you wanna be my equal, then you know buck up. What the heck are you talking about? नहीं, पॉइंट ये है कि अभी कई मर्द ऐसे हो सकते हैं जो कमेंट में बोले कि मर्दों के साथ भी होता है. वही रेशियो अगर आप इक्वेट करने जाएंगे ना तो 99:1 निकलेगा, जहाँ 1% आप मर्दों के साथ. बिल्कुल सही आपने बोला. ये एक बात होती है मुझे समझ नहीं आती, जो आई वाज टॉकिंग टू यू बिफोर दिस, कि जब भी मैं कोई ऐसा पोस्ट करती हूँ जो you know which praises women or which empowers them or gives them inspiration, I don't know why certain men get offended. Men said biological differences क्यों गिना रही हो? कि biological differences हैं. आपको मेनोपॉज नहीं होता, आपको पीरियड्स नहीं होते, लोग बोलते पीरियड्स गिनाते रहते हो. जी हाँ, क्योंकि वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. महीने में 4 हफ्ते होते हैं जिसमें से 1 हफ्ता आपके पीरियड्स में जाता है, फिर उसके PMSing, उसके सिम्टम्स पहले, उसके बाद में, और उसके बाद क्योंकि खून आना बंद हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मेनिस्ट्रुएशन बंद हो गया, राइट? यू आर गोइंग थ्रू ओव्यूलेशन, यू नो, सो मेनी फॉलिकल्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन योर बॉडी. Hormones are going up and down. Right? Women are born with eggs and they exhaust them at a certain age while men keep producing. So you do have certain challenges. उसके बाद menopause, उसके बाद hot flashes, फिर बच्चा, right? And every whatever 2-3 seconds one child is born. How is that happening? Women are producing them. Now fine, men have a contribution, a big one, without whom we cannot reproduce, but still, so one can be considerate towards that part. जो काम की बात, आप स्टार्ट में मॉडलिंग किया करती थी और आपने फोटोशूट्स किए कई सारे. मॉडल्स के साथ कई बार ऐसा बात करता, कास्टिंग हो या डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो, कई बार ऐसे बात करते हैं जैसे वो एक मैनिक्विन है. तो आप you didn't face any of those in the industry? Experiences did happen. One of the times I was called by a casting team or a casting director, and I remember there was a young guy sitting there who was probably the owner of that showroom. Okay. And there were many models coming in and having their professional meetings and stuff, right? But what he was doing is he was telling them to go and change into their outfits to see how it was तो looking on उनके them. लॉन्जरी में चेंज करके आना. Lingerie नहीं, उनके outfits में, proper like dresses and all. Fair okay. enough. तो मैंने कहा okay, fine. But something I found really fishy, because at some point he said you need to remove your bra and wear that outfit and come out. So I found it damn weird. I'm like, पर क्यों? You're not going to shoot without a bra. Like
you know, then why do you want to see me without a bra? And maybe it was the fetish of that guy. Who the hell knows? Because there is no concept like that. चेंजिंग रूम में कैमरास हो सकते थे? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, कुछ भी हो सकता था. But I was too young to even formulate this as an experience also. Like आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो, ये ना, वो ऐसी चीज़ होती है. This is the first time I was ever speaking about it. आपकी भी मदर लेकिन सिंगल मदर थी, तो डिड दैट गिव यू अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड बचपन? बहुत, मतलब मेरे जो बचपन की स्टोरीज़ और हसल्स हैं वो तो एक बहुत ही अलग लेवल पे है. मैंने अपनी मम्मी को बहुत कुछ करते हुए देखा था. मतलब मम्मी ने और मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम साथ में दिया. So there was a certain, I think 1 or 2 years of my life when mummy was alone and she had a lot of hustle, right? But कहीं ना ये ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि मैंने सोचा था कि मैं सिंगल मदर नहीं बनूंगी. So I tried to hold on to my marriage as well. This is the one thing that I would like to tell people, that when you get those signs, it's time to move on. You should move on before life pushes you out that door. Because when it pushes you out, you're not prepared. Because you want to live in denial. But क्या होते हैं रेड फ्लैग, निशा? I don't think I'm at liberty probably, you know, to talk a lot about it. But red flags होते हैं abuse. Of any sort? Abuse, जी हाँ, abuse सिर्फ physical नहीं होता है. फिजिकल अब्यूज़ का भी एक स्पेक्ट्रम होता है. मेंटल अब्यूज़ होती है, इमोशनल अब्यूज़ होती है, वेर यू डोंट फील दैट यू बिलोंग, वेर यू डोंट फील दैट you know you are being served the right respect, and you don't think that you deserve certain behaviors, whether it's conversations or whether it's, you know, in front of somebody else, where you feel that you are being demeaned. Yeah. And I was living in denial too, because like I said, that social conditioning, मुझे लगा ये normal है, right? नहीं यार, शादी ऐसी होती होगी तो क्या हुआ, वो दारू तो नहीं पीता ना, तो क्या हुआ, वो सिगरेट तो नहीं पीता ना, तो क्या हुआ, मुझे रोज़ तो नहीं मारता ना, वो मेरी नेबर तो बेचारी रोज़ मार खाती है, you know, तो क्या हुआ. ये जो तो क्या हुआ हम बोलते हैं ना, वो अपने आप को बोलते हैं, एक्चुअली अपने आप को दिलासा देने के लिए बोलते हैं. हमारी इनर वॉइस हमें बोल रही होती है, नो, दिस इज नॉट ओके. क्या होता है कि कई बार हम लोग जब डोमेस्टिक अब्यूज़ या इनफिडेलिटी के बारे में बात किए हैं, तो कई बार कमेंट्स में भी लोग आ गए हैं बोलते हुए कि ये तो उनकी गलती होगी. ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है. मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ें प्रोवोकेटिव लगती होंगी, बट वो औरत उस इंटेंशन से नहीं कर रही है कि वो आपको प्रोवोक करे. मतलब उसका हाजिर जवाब होना या स्ट्रॉन्ग रख के रिवर्ट करना, ये भी लोगों को जवाब देता है. Yes, because I think we've all seen women in a very docile space over centuries. They have been portrayed like that. कि एक औरत क्या करेगी, घर में बच्चा संभालेगी, काम करेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, टिमिड है, धीरे से बात करो बेटा, ज़्यादा दांत मत दिखाओ, ऐसे भी चीज़ होती है. पैर खोल के मत बैठो, राइट? जोर से मत हंसो, आर्ग्यूमेंट मत करो, है ना, जल्दी जल्दी काम करो, नीचे देख लो, फिर रात को तितली भी बन जाओ अपने हस्बैंड के लिए. So I'm saying, what? ये जो औरतों की के ऊपर शोल्डर्स पर जो वज़न डाला गया ना, कि सुबह टिफ़िन बनाना है और रात तक आपकी ड्यूटीज़ है, फिर सुबह आपको फिर से जल्दी उठना है. यू कांट इवन पुट ऑन वेट इवन दो यू हैड मल्टीपल मिसकैरेजेस एंड प्रेगनेंसीज, राइट? बिकॉज द हस्बैंड विल बेटा फॉल इन लव विद समवन एल्स. फिट रहो, जिम जाया करो. कब? लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को हाई रखने की एक्सपेक्टेशन करती है क्या सोसाइटी? ये मेरा थॉट सवाल है. हाँ, करती है क्योंकि जब एक भाई और एक बहन होते हैं तो बचपन में बहन को बोला जाता है बेटा भाई को दे दो. हमने तो वो ज़माना भी देखा है कि भाई स्कूल जाएगा और बहन घर में रोटियां बनाएंगी ना बेटा, क्योंकि आपकी तो शादी होनी है. बड़े बड़े घरों में भी ये होता है. आर्थिक समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी की हम जो बात करते हैं, जो जनरली कि सेव करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ डालें पैसा, वो जर्नी कैसे चालू हुई, कैसे कैसे आप स्टम्बल करके गिरी, कैसे कैसे आप सीखी? So yes, it's been tough, but one needs to know about how they need to invest their money wisely. They need to secure themselves. आप अपने पार्टनर पे इतने ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो कि आप अपनी पर्सनालिटी भूल ही जाते हो, यू नो. और यूजुअली ऐसा होता है कि पार्टनरशिप जब होती है शादी में, तो एक पार्टनर होता है जो आपके फाइनेंशियल हेड होता है, फाइनेंसेस करता है, चाहे औरत ही कमा भी क्यों ना रही है, तो भी, यू नो, सब दो रोल्स आर डिवाइडेड, नो, इन एन अनस्पोकन वे. एंड वुमेन विल प्रॉब्ली बी मोर क्रिएटिव और विल टेक केयर ऑफ द किड्स और विल डिसाइड कौन से पर्दे लगाने या बच्चे कौन से स्कूल जाएंगे. सो हम कहीं ना अपना वो जो रेंज होता है फिर से उसको दे देते हैं इतना ज़्यादा कि हम अपाहिज हो जाते हैं. सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपाहिज हो गई थी.
तो मैंने उस चीज़ को पहले तो एक्नॉलेज किया कि जी हाँ मैं हो गई थी, फिर मैंने उस चीज़ को बोला ओके फाइन, यू नो वी आर स्टार्टिंग अगेन, सो वी विल स्टार्ट, वी विल फिगर इट आउट, वी गॉट इट, वी विल बी मोर इन्फॉर्म, वी विल टॉक टू द राइट पीपल, चाहे वो फाइनेंशियल हेड्स हो या आजकल तो कितनी सारी चीज़ें हैं। यार हम लोग फीमेल प्लेजर के बारे में जनरली बात करते हैं, तो उसकी अवेयरनेस और समझ का क्या है आपका? मतलब मैं बहुत Timeline. शॉक्ड हूँ, मतलब फीमेल प्लेजर के बारे में आप बोल रहे हो, मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मैं कितने डिनायल में रही हूँ, यू नो, एंड आई फील दैट पहली बात तो योर प्लेजर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, not theirs alone. they're not theirs alone. So when I say that, I mean to say that of course communication is key. You will communicate to your partner on what they can do to help you achieve that pleasure, and they will do it because they love you, they care about you, and you will do the same, right? But I'm saying that ultimately it's your responsibility. बस यही है कि आपको फिर लेकिन कहाँ से समझ आ रही थी? लाइक वर यू लर्निंग ऑन द गो, वर यू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज व्हाट आई लाइक, ये मुझे नहीं पसंद, ऐसी वाली चीज़ें? और ये भी स्टिग्मा नहीं होना चाहिए ना कि भाई आफ्टर अ सेपरेशन अ वुमन कैन डू दिस और दैट, या जो बाहर वाले गेज करते हैं वो बड़ा होता है। अगर एक वुमन जो खुद उससे गुजर रही है, ठीक है, सोचती है कि वो ये भी कर सकती है, इफ शी कैन डेट ऑल्सो, शी कैन गो टू ऑफिस ऑल्सो, शी कैन वर्क हाउएवर शी वांट्स टू वर्क, शी कैन वेयर व्हाट शी वांट्स टू वेयर, तो आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? आप तो कोई भी मदद नहीं कर रहे, पर आप ताने मार रहे हो, बट हु केयर्स अबाउट योर ताने? इट्स सो पासे, लाइक ग्रो अप, राइट? So don't make it, if you can't make it easy for anyone, don't make it difficult. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत ज़्यादा अच्छा, very liberating. तो आप लोग जो सीखते हैं वो हमें कमेंट्स में बताते रहिए कि ताकि निशा भी देखे उनको, कभी कभी कमेंट्स पढ़ लेती हैं ये तो शायद रिप्लाई भी कर दे। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम मैन, साइनिंग ऑफ। This is Nisha Rawal. Thank you for having me.